اسی کے ساتھ عائشہ تحسین اور کیمرہ مین نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اتنا زوم نہ کرو مجھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ نہ کر سکا. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی نئی مردم شماری سے پیدا صورتحال پر دو اجلاس ہوئے جو کہ نتیجہ خیز رہے. الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے پر لکی مروت میں درہ پنڈو میں پولیس مظاہرین پر فائرنگ. ایک شخص جاں بحق، 4 افراد شدید زخمی ہو کر. وانڈا چوگی کے عوام کا ساتھیوں کی گرفتاری. رات کے انڈس ہائی وے پر احتجاج. پولیس کے ساتھ رات گئے کلامی کے بعد اہلکاروں نے فائرنگ کر دی. مستعد عوام نے لاش فیکٹری کے سامنے رکھ کر دوبارہ احتجاج شروع کر دیا. ننکانہ ساحل میں تھانہ وار برٹن پولیس کی بڑی کارروائی. ڈکیٹ گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. قبضے سے لاکھوں کے مالک کے 2 ٹریکٹر نقلی اور اسلحہ برآمد. ملزمان احمد بوٹا اور ایوب کا ڈکیٹی سے 13 واقعہ انکشاف. مزید تفتیش جاری. پتوکی پولیس کا علاقے کو منشیات سے پاک کرنے کا عزم. تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی. منشیات فروش گرفتار. ملزم عثمان کے قبضے سے 1.5 کلو سے زائد چرس برآمد. ملزم پرانی منڈی کا رہائشی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات فروخت کرتا. سول ہسپتال ڈگری کی چھت کا پلستر گر گیا. چھت کا پلستر گرنے کے باعث علاج کی غرض سے آنے والے بزرگ مریض، معصوم بچہ اور اسٹاف کا ایک شخص زخمی ہوا. زخمیوں میں عبدالسلام نثار احمد خاصیلی قاصد سول ہسپتال ڈگری شامل. 1963 میں تعمیر شدہ ہسپتال کی بلڈنگ مکمل طور پر پوسیدہ کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے. السلام علیکم. کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. الميعاد. ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ
کیا، سیالکوٹ کے تحصیل بازار میں دکان اور گاہک لڑ پڑے، بازار میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا، مسلح افراد کی فائرنگ، تمام افراد محفوظ رہے، پستول کا بٹ لگنے سے تاجر زخمی، کومنٹ نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی، پولیس فائرنگ کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے، پولیس کے مطابق جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ محکمہ تعلیم کے حکام کی سستی کے باعث ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے بھیجی گئی کتابیں تاحال گوداموں میں پڑے ہونے کا انکشاف ہے۔ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں نصابی کتب کی قلت کی خبر کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر سندھ ٹیکسٹ بک کے چیئرمین آغا سہیل احمد کی زیر نگرانی میں کمیٹیاں تشکیل دی گئی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویجیلنس ٹیموں نے سندھ کے مختلف ڈویژنوں میں محکمہ تعلیم کے ذریعے اور تعلقہ گوداموں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں، جس پر ان کے گوداموں میں پڑی کتابوں کی بورڈ کی ٹیموں نے ثبوت کے طور پر ویڈیو اور تصاویر لے کر جاری کر دی ہیں۔ محکمہ تعلیم کے متعلقہ حکام کو کتابیں فوری طور پر اسکولوں میں پہنچانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ محکمہ تعلیم کے حکام نے سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ ہے کہ کتابیں فوری طور پر بچوں تک پہنچائی جائیں تاکہ کتابوں کی کمی کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ ایگزیکٹوز کی سفارش کی جائے گی۔ کشمور میں بدامنی عروج پر شہری عدم تحفظ کا شکار ہے، 9 مسلح افراد کا کھوسہ موبائل مارکیٹ میں ہوٹل پر حملہ، شہریوں کو یرغمال بنا کر شہریوں سے قیمتی موبائل فون اور لاکھوں روپے کی نقدی چھین لی اور ایک نوجوان کو اغوا کر لیا۔ کشمور پولیس نے کوئی کارروائی نہ کر سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ کشمور میں بدامنی عروج پر ہے، شہری عدم تحفظ کا شکار ہے، 9 مسلح افراد کا کھوسہ موبائل مارکیٹ میں ہوٹل پر حملہ، شہریوں کو یرغمال بنا کر شہریوں سے قیمتی موبائل فون اور لاکھوں روپے کی نقدی چھینی اور ایک نوجوان کو اغوا کر لیا۔ اوکاڑا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعل سازی کا ایک اور منصوبہ ناکام بنا دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا فیصل محمود کالونی کینال روڈ پر واٹر پلانٹ پر چھاپا، 1000 لیٹر پانی کی جعلی بوتلیں اور پلانٹ ضبط، مالکان کے خلاف تھانہ صدر ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ واٹر پلانٹ کے اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے کینال روڈ پر فیصل محمود کالونی میں واٹر پلانٹ پر چھاپا مارا، جعل سازی کرنے پر واٹر پلانٹ کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی۔ معروف برانڈز کے نام سے جعلی بوتلوں میں پانی کی فلنگ کی جا رہی تھی۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے جعلی پانی کی بوتلیں ضبط کر کے فیکٹری کو بند کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ خوراک کے نام پر جعل سازی کرنے والے انسانی صحت کے دشمن ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر معیاری خوراک کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ کمیر شریف میں قتل کی خیز واردات، کچی آبادی میں مقیم محنت کش کا پراسرار قتل، نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر افتخار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ افتخار اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر میں موجود تھا، ملزمان نے زندگی چھین لی، پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وہیں دوسری جانب کمیر شریف میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آر پی او، ڈی پی او ساہیوال کی شرکت، پولیس دستے نے سلامی پیش کی، علاقے بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد کی بھی شرکت، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کمیر شریف میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آر پی او، ڈی پی او ساہیوال کی شرکت، پولیس دستے نے سلامی بھی دی، علاقے بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملک بھر کی طرح جدوئی میں بھی جشن آزادی شایان شان انداز سے منانے کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جگہ جگہ سٹال سج گئے ہیں اور بچے، بوڑھے اور خواتین خریداری میں مصروف عمل ہیں۔ کیپ، گلاسز، چوڑیاں، رنگ برنگے کیچرز اور اسی طرح مختلف اشیاء کی فروخت جاری ہے۔ حجرہ شاہ مقیم میں وابڈا کا جعلی اہلکار شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، خوب دلدل بنا کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ واقعہ گاؤں بونگی کلیاں میں پیش آیا۔
मुदस्सिर रजा जाली एहलकार बनकर किसानों से बिजली का बिल वसूल करने में मसरूफ था कि शक पर अहले इलाका ने जाली एहलकार को पकड़कर दुर्गत बना दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शोरकोट हवेली बहादुर शाह में न्यू गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत शजरकारी मुहिम के तहत 300 फलदार और सायेदार दरख्त लगाए गए। डिप्टी डायरेक्टर नईम नशारी दावत इस्लामी के तहसील निगरान गुलाम सरवर कादरी ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी गुलाम शब्बीर ताहिर। शोरकोट में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। हवेली बहादुर शाह में न्यू गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत शजरकारी मुहिम के तहत 300 फलदार और सायादार दरख्त लगाए गए, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर नईम नशारी दावत इस्लामी के तहसील निगरान गुलाम सरवर कादरी ने पौधे लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर नईम नशारी ने भी अपने हाथों से पौधे लगाए। उनका मजीद कहना था। रहमान रहीम, मैं मोहम्मद नईम खान, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज चंग, आज मौजूद हैं गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर विमेन हवेली बहादुर शाह। ये हमारा न्यूली एस्टेब्लिश कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर आज दावत इस्लामी की FGRF तंजीम और जनाब सरवर कादरी साहब अपने शोरकोट से 300 पौधा लेकर आए हैं और आज हमने ये पौधे यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए, जो कि इस कॉलेज की इंतहाई अहम जरूरत थी। तो मैं ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो इसकी कवरेज के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि दावत इस्लामी हमें मज़ीद भी इस किस्म के पौधे देगी, क्योंकि ये एक हमारा नौज़ायदा कॉलेज है और इसमें एक भी दरख्त इससे पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे फलदार दरख्त लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे जो है सायेदार दरख्त भी लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे वक्त की ज़रूरत है और इस मुल्क के लिए जो इसकी ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया जी। इस कॉलेज में कोई एक भी पौधा नहीं था। दावत इस्लामी के शोबा FGRF और उसकी पूरी टीम बिलखसूस गुलाम सरवर कादरी तहसील निगरान दावत इस्लामी शोरकोट कारी असद शोबा FGRF का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये काविश की। वासियों से अपील करता हूँ कि शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कैमरा टीम के साथ गुलाम शब्बीर ताहिर। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी 76वीं जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां धूमधाम से जारी है। जैसे जैसे 14 अगस्त नजदीक आ रहा है, भावलपुर के शहरी भी मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी कर रहे हैं, जिसमें बैजेस, शर्ट, झंडे, कैप खरीदने में मसरूफ अमल है। मिलीद नगमों की भी तैयारी की जा रही है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी 76वां जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां धूमधाम से जारी हैं। जैसे जैसे 14 अगस्त नज़दीक आ रहा है, भावलपुर के शहरी भी मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारी में मसरूफ हैं, जिसमें बैजेस, शर्ट, झंडे, कैप खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ मिली नगमों की भी तैयारी की जा रही है। छोटे बड़े जश्न आज़ादी को धूमधाम से मनाने के लिए अपने घरों को भी खूबसूरती के साथ सजा रहे हैं। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान। 14 अगस्त का दौरा है और सब लोग एक्टिविटीज में शामिल हैं। बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। बच्चों की खुशियां ज़्यादा होती हैं और ये विरासत हमारे बच्चों के जरिए हमारे नस्लों तक चलनी चाहिए और इसमें बड़ा रोल है बड़ों का भी कि हम उनको बताएं, उनको मिली नगमे सिखाएं, उनको डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं 14 अगस्त के रिलेटेड, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, स्कूल्स के अंदर हैं, या जितने प्रोग्राम्स चलते हैं टीवी के अंदर, उनको सबको अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ को अच्छा समझ के और उस चीज़ को आगे ले चलें और पाकिस्तान की इस्तकामत के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम अपने बच्चों तक मुंतकिल कर सकें। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल खान, कोहिनूर न्यूज़।
खबर शामिल करें, सियालकोट के इलाके हाजियाबाद में डाकुओं ने मुताबिक राहगीरों को लूट लिया। पुलिस वाकये के तकरीबन 1 घंटा ताखिर से पहुंची। वाकये के बाद पुलिस ताहाल अभी तक किसी भी डाकू को गिरफ्तार न कर सकी। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको देख करके चले इस हवाले से कि सियालकोट के इलाके हाजियाबाद में डाकुओं ने मुतादिद राहगीरों को लूट लिया। पुलिस वाकये के तकरीबन 1 घंटा ताखिर से पहुंची। वाकये के बाद पुलिस ताहाल अभी तक किसी भी डाकू को गिरफ्तार न कर सकी है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब कसूर में दीपालपुर रोड पर खुडिया के करीब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर हुआ। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार सवार पुलिस मुलाजमीन जाए हादसा से फरार हो गए। आपको बताते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि कसूर में दीपालपुर रोड पर खुडिया के करीब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर से हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार सवार पुलिस मुलाजमीन जाए हादसा से फरार हो गए। दूसरी जानिब नारोवाल में मिठाई खाने के एक ही खानदान के 5 खवातीन की हालत गैर हो गई। 5 मुतासरा खवातीन खेतों में काम कर रही थी। आपको बताते चले कि नारोवाल में मिठाई खाने पर एक ही खानदान के 5 खवातीन की हालत गैर हो गई। 5 मुतासरा खवातीन खेतों में काम कर रही थी। मिठाई खाने से मुतासर होने वालों शगुफ्ता, आयशा, अरीबा, नशीन, जैनब शामिल हैं। डॉक्टर सैफुल्लाह के मुताबिक 5 खवातीन की हालत अब खतरे से बाहर है। आपको बताते चले इस हवाले से कि नारोवाल में मिठाई खाने से एक ही खानदान की 5 खवातीन की हालत गैर हो गई। 5 मुतासरा खवातीन खेतों में काम कर रही थी कि मिठाई खाने से मुतासर होने वालों में शगुफ्ता, आयशा, अरीबा, नशीन, जैनब शामिल है। डॉक्टर सैफुल्लाह के मुताबिक 5 खवातीन की हालत अब खतरे से बाहर है। फकीर वाली पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने मुलजिम तलहा की निशानदही पर सीम नाला से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम मेहरान की निशानदही पर रेलवे लाइन के करीब झाड़ियों से पिस्तौल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO फराज अहमद का कहना था कि दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। नारंग मंडी हल्का PP 135 में उम्मीदवार MPA चौधरी रमजान मुस्तफा की क़ियादत में लब्बैक या रसूल अल्लाह रैली निकाली गई। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। TRP के नामजद उम्मीदवार चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सियाल की जानिब से लब्बैक या रसूलुल्लाह रैली का इनेकाद किया गया। अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सियाल का राना यासर, राजा वसीम साहब सारे का मैं शुक्रिया अदा करना पूरे बशीर टाउन का सारे ने उन्होंने मुहब्बत का शुक्रिया। अद्धी रात तक सारे मेरे इंतजार च बैठे ने तो मैं माजरत चाहना लेट हो गई है पिछे। तुहाडा शुक्रिया, तुसा साडा इंतजार किया है। ते गल्लां दे कारी साहब भी सारियां कर छड्डदे ने, मेरे जोगियां ते छड्डदे ही नहीं। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। जिथे साडी जरूरत पे रात नूं दिने असीं तापियादार हाज़िर हाँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी तुहाडी नवाजिश है ते फिर तुहानूं मिलांगे, फिर वड्डा जलसा करांगे, फिर गल्लां भी चोखियां करांगे इंशाअल्लाह। सादकाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। डेयरी सेफ्टी टीम ने नाकाबंदी के दौरान निश्तर चौक में दूध बरादार गाड़ी धर ली। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक 600 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर लिया गया। गाड़ी मालिकान को 14,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है।
टेस्ट के दौरान दूध में यूरिया फॉर्मेलिन की मिलावट पाई गई। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। मेयार में बेहतरी तक मुसलसल कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। अंजुमन गुलामाने कलंदर वेलफेयर की मरकजी स्टूडेंट टीम की जानिब से हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की नगरी में 21वीं महफिल कसरत दरूद शरीफ मुनक्किद की गई, जिसमें करोड़ों दरूद शरीफ और खत्मुल कुरान की इज्तिमाई दुआ मांगी गई। सरपरस्त साइंस सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी की लिखी हुई किताब रोमी जी ओताब इनामात के तौर पर तकसीम की गई। खिताब करते हुए साइंस सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने कहा कि सेवन की सरजमीन से कई सौ सालों से इंसान जात की इस्लाह की जा रही है। अंजुमन गुलामाने कलंदर का मकसद है जहाँ जिक्र खुदा हो वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुलंद किया जाए। बहरकी से एक माह कबल अगवा होने वाले बाकू भुट्टो की रिहायशी ड्राइवर अब्दुल फताह भुट्टो की बाजियाबी ना हो सकी। डाकुओं ने ड्राइवर पर तशद्दुद की वीडियो भी लवाहिकीन को भेज दी। 2 दिन में 50 लाख तवान देने की वार्निंग जारी कर दी गई। कहा कि 2 दिन में तवान ना दिया गया तो यरगमाली को कत्ल करके लाश पुरसा के हवाले कर दी जाएगी। नौजवान को कत्ल होने से बचाया जाए, लवाहिकीन की IG सिंध से अपील। रतो डेरों में नौजवान एक साल से जिगर के आरसे में मुब्तला है। नौजवान मोहम्मद अयास ने अपनी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी। इलाज के लिए हुकाम से मदद की अपील। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इस्मतुल्लाह कंभर। रतोडेरो के निवाही गांव पीरानू खान सुनानी में गुज़श्ता 1 साल से जिगर के मर्ज में मुब्तला नौजवान मोहम्मद अयाज ने अपनी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी। लेवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स की जानिब से तकरीबन 80 से 90 लाख तक का खर्चा बताया है। हुकूमत और दीगर आला हुकाम से इलाज कराने की अपील। मोहम्मद अयाज बुलदी और उसकी वालिदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेरे जो मसला अच्छा साल थे मां बीमार आयो वडो खर्च किया कराची आया हूँ गंबट गया हूँ सक्कर गया हूँ फरक न तो पे टके होगी ड्राइव चवंदा था लीवर थींदो ऑपरेशन थींदो जंहिंमें त किरोड़ ख़र्चो ॿुधाईंदा किरोड़ जो वसियत असां वटि न आहे जो असां ऑपरेशन लीवर करायूं। गरीब माण्हू तव्हां मज़ूरी कंदा आहियूं। अच्छा जी जी ज़मीनूं वग़ैरह आहिनि? कुझु बि न आहे, ज़मीन वेसो बि न आहे, कुर्बत कयूं था। घर वग़ैरह अॻिले बरसाति में जेको हुयो घर वग़ैरह हुया उहे टही विया। ॾिसो था तव्हां त घर वग़ैरह कुझु बि न आहे। बस इहो पिया आहियूं पट ते पिया आहियूं वण जी छांव ते वेठा आहियूं भला यादि कयूं वेठा आहियूं। असांजो अर्ज़ु आहे बिलावल भुट्टे खे ऐं आसिफ अली ज़रदारी खे फरियाल टारपुर खे त एजाज़ लेवारीअ खे त असांजो सरकारी तरफ़ असांजो इलाज करायो वञिजे ऐं असांजी ज़िंदगी बचाए वञिजे। नंढड़ो पुट आहे बा मुंहिंजो लख रुपया खपायासीं मींहं खां वठी बीमार आहे पराकूं चाक न आहे माल हुयो मता हुयो जेको हुयो असां खपायो उहो डगदरनि ते लातोसीं अबा हाणे असांखे वसियत न आहे घर पर ड्रही विया आहिनि। असां निम जे हेठां छांवेड़े में पिया आहियूं टपड़ टाड़ियूं पाण खटोला धटोला मींहं में असां ईअं पिया आहियूं। महिरबानी कने असां ते हाणे असांजो सरकारी इलाज कराइण। जिगर के मर्ज में मुब्तला नौजवान और उसके वर्षा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, MPA फरियाल टारपुर, जिला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन एजाज अहमद लेगारी और दीगर आला हुकाम से मुतालब किया है कि सरकारी खर्चे पे लेवर ट्रांसप्लांट करवा के जिंदगी बचाई जाए। कैमरामैन बशीर मरी के साथ असमदुल्लाह कुंबर, कोहिनूर न्यूज़। पंक्रियों पुलिस पर हमले के बाद SSP बदीन की हिदायत पर 28 पुलिस मोबाइलों के साथ पुलिस की भारी नफरी ने गांव को घेरे में ले लिया। गांव उम्मीद अली खास फैली में रात गए हैदराबाद और पंक्रियों पुलिस ने रुपोश मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए मोबाइल फोन की लोकेशन छापामार कार्रवाई की तो अचानक गांव के वासियों ने औरतों के साथ पुलिस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें पंक्रियों SHO ने मला सिपाही गुलाम मोहम्मद खोसू सिपाही नूर हसन जख्मी हुए और एक पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़े, जिसके बाद SSP बदीन शाहनवाज चाचड़ की सख्त हिदायत पर SHO पंगरियों ने
کی سربراہی میں ضلع بھر کی پولیس کی بھاری نفری نے 28 پولیس موبائلوں کے ساتھ کار سرکار میں مداخلت کرنے کے جرم میں ملوث گاؤں والوں اور گاؤں میں چھپے روپوش مجرم سلیمان ماچھی کی گرفتاری کے لیے پولیس نے گاؤں کا گھیراؤ کر لیا۔ آئی جی پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، تھانے میں آنے والے سائلین کی تسلیل۔ سرائے عالمگیر کے تھانہ سٹی میں خاتون سائل سے تفتیشی افسر اسلم کا ناروا سلوک۔ تفتیشی آفیسر محمد اسلم تفتیشی کمرہ میں کپڑے اتار کر خاتون سائل کے سامنے لیٹ گیا۔ فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ ناروا سلوک اور دیسی ماحول معمول بننے لگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ آئی جی پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے، تھانے میں آنے والے سائلین کی تسلیل کی گئی۔ سرائے عالمگیر کے تھانہ سٹی میں خاتون سائل سے تفتیشی افسر اسلم کا ناروا سلوک۔ تفتیشی آفیسر محمد اسلم تفتیشی کمرہ میں کپڑے اتار کر خاتون سائل کے سامنے لیٹ گیا۔ فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ تھانے میں آنے والے سائلین کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا اور دیسی ماحول معمول بننے لگا۔ ڈی پی او اوکاڑا کی ہدایات پر ٹریفک آگاہی مہم کے سلسلے میں آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی ہیلمٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کیمپ لگانے کا مقصد لوگوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی ہے۔ ٹریفک آگاہی کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس حوالے سے کہ ڈی پی او اوکاڑا کی ہدایات پر ٹریفک آگاہی مہم کے سلسلے میں آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کیمپ لگانے کا مقصد لوگوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی ہے۔ ٹریفک آگاہی کے ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنا ہے۔ لکی مروت میں پولیس مظاہرین پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ وانڈا چوگی کے عوام کا ساتھیوں کی گرفتاری پر رات گئے۔ انڈس ہائی وے پر احتجاج، پولیس کے ساتھ تل کلامی کے بعد اہلکاروں نے فائرنگ کر دی۔ مشتعل عوام نے لاش کو سامنے رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ انڈس ہائی وے بھی ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مظاہرین کی طرف سے ہم پر فائرنگ ہوئی جس پر جوابی کارروائی کی گئی۔ ہری پور میں سماجی شخصیت راشد زمان خان اللہ یار خان کی کاوشوں سے ولیج کونسل جاگل کے گاؤں ناڑا بسومیرا اور دھمکار کالونی میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد کا مفت معائنہ اور بعض مریضوں کے آنکھوں کے آپریشن بھی کیے گئے اور ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے راشد محمود۔ ہری پور وی سی جاگل کے گاؤں بسومیرا ناڑا دھمکار کالونی میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہری پور کے وی سی جاگل کے دیہاتوں بسومیرا ناڑا اور دھمکار کالونی میں سیاسی اور سماجی شخصیت راشد زمان خان وی سی کھلابٹ چیئرمین اللہ یار خان کی کاوشوں سے مائی ڈاکٹر کیسر شاہ کی نگرانی میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں مرد و خواتین اور بچوں نے اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروایا اور جنہیں فری ادویات بھی مہیا کی گئیں۔ اس موقع پر کسان کونسلر شراج شاہ کا کہنا تھا میں جو کہ ناڑا بسومیرا اور دھمکار کالونی میں میڈیکل فری کیمپ لگا ہوا تھا، جن میں سے تقریباً 200 سے زیادہ مریض تھے، ان میں سے 24 پیشنٹ جو ہے آپریشن کے تھے۔ ان کا آپریشن کا بعد جو الفلاح انٹرنیشنل ہے اس میں ہم نے آپریشن کرا دیے تھے، جن میں سے ہمارے کے ساتھ چیئرمین کھلابٹ اللہ یار خان، راشد زمان خان کی بھرپور تعاون سے انہوں نے یہ کیمپ مقرر کیا تھا اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم آئی ٹیم جو ہے سب ڈاکٹروں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ غریب عوام تھے، ان کا آپریشن کا مسئلہ حل کیا تھا اور ساتھ میں سے سب پیشنٹ کو دعائی بھی دی تھی۔ جبکہ مریضوں کو الفلاح انٹرنیشنل اسپتال ایبٹوال لے جانے کی خدمات کسان کونسلر شراج شاہ نے فراہم کی اور خود بھی موقع پر موجود رہے۔ اہلیان وی سی جاگل نے آئی کیمپ کے انعقاد پر راشد زمان خان، اللہ یار خان، شراج شاہ اور ڈاکٹرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ راشد
मंचू कबाइल का जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे के खिलाफ कुरान पाक उठाकर नसीराबाद से कोयटा तक पैदल लॉन्ग मार्च शुरू। शुरका का कहना है कि हमारे आबाई जमीन पर एक साबिक सूबाई वजीर ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया क्या है। जोर ताकत से हमारी बाप दादा की जमीनों से हमें जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट फौरी नोटिस ले। जैकबाबाद में कोविड वबा के दौरान सिंध भर में तैनात होने वाले डेली वेजेस मुलाजमीन का मुतालबात के हक में DHO दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि वबा के दौरान अपनी जानों पर खेल कर अवाम की खिदमत की। मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जो नाइंसाफी है। फाकों पर मजबूर हो चुके हैं। वजीर आला सिंध अपना किया वादा पूरा करें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ननकाना साहब में थाना वारबर्टन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिकेट गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 2 ट्रैक्टर, नकदी और असलहा बरामद। मुल्जिमान अकरम उर्फ बूटा और अयूब का डिकेट समेत 13 वारदातों का इंकशाफ। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। DPO ननकाना साहब की SHO सेफ वर्क और टीम को शाबाश। DPO का कहना था कि जराइम पेशा अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर बहावल विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गए। इमरजेंसी मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों से इलाज और मुआवजे बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वजीर का कहना था कि सूबा भर के अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में बेहतरी लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। DPO बहावलपुर भी हमरा थे। सूबाई वजीर डॉक्टर नासिर जमाल ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर से भी मुलाकात की। इस मौका पर डिप्टी चीफ UNRC ओशा नासिर खान भी मौजूद थे। इजलास में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सूबा भर में जारी हेल्थ केयर प्रोग्राम बारे तबादला ख्याल किया गया। ओकाड़ा में नाबीना अफराद हुकूमत की जानिब से हुकूक तलब होने पर घरों से बाहर निकल आए। DC डॉक्टर ज़ीशान हनीफ के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बाइज्जत रोजगार मैसर न होने की वजह से घरों के चूल्हे बंद होकर रह गए हैं। बर्खास्त किए गए मुलाजमीन को दोबारा बहाल किया जाए। सरकारी कोटे से हमें हमारा पूरा हक दिया जाए। हमें हमारे हकूक फिलफौर फ्राहम किए जाए। रेनाला खुर्द में दावत इस्लामी के जेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एक्सियन वाबडा, साइरस आजम और सदर प्रेस क्लब, जहूर अहमद शाहीन, चेयरमैन एजाज ताहिर कादरी, सरफराज अहमद भट्टी, चौधरी इमरान खुशी ने पौधे लगाए। शुरका का कहना था कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। तमाम मुसलमान भाइयों को चाहिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। लेबर कौमी मूवमेंट कमालिया के सदर मलिक अब्दुल मजीद की क़यादत में पावर लूम मालिकान और पावर लूम वर्कर्स ने बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। बहावल नगर में दरिया सतलुज के मकाम पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। गंजुशाह के करीब 3 बच्चियां दरिया सतलुज के किनारे खेलते हुए सैलाबी रैले में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को जिंदा बचा लिया, जबकि 11 साल शमू सैलाबी रैले में बह गई बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जारी है। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि बहावल नगर में दरिया सतलुज के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां गंजू शाह के करीब 3 बच्चियां दरिया सतलुज के किनारे खेलते हुए सैलाबी रैले में डूब गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 बच्चियों को जिंदा बचा लिया, जबकि 11 साल शमू सैलाबी रैले में बह गई बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार हो गया। अली गुलाम रसूल ने 2 साल कबल जमीन के तनाज़े पर शाह बख्श को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम दुबई फरार हो गया था। डीपीओ हसन अफजल का कहना था कि हमारा मकसद मजलूम की दाद रसी है। संगीन जराइम में मुलविस चोरों, राहसनों और डाकुओं के मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। डीपीओ डेरा गाजी खान का इंस्पेक्टर आसिफ इकबाल राना, SHO सखी सरवर सजाद हुसैन को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। पतोकी पुलिस का इलाके को मुनशियात से पाक करने का आज़म। थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम उस्मान के कब्जे से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद हुई। मुलजिम पुरानी मंडी का रिहायशी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोख्त करता था। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। फैसलाबाद में जुल्म की एक और दास्तान। हवा की बेटी जालिमों के निर्भय में आ गई। गाँव के ही बासर अफराद ने खातून को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस का हाल मुकदमा भी दर्ज न कर सकी। उन्होंने कहा कि गांव के करीब बीबी को मंजर आम पर लाया गया। नासिर और गुलाम हुसैन जबरदस्ती उठाकर ले गए। मुतासरा खातून के मेडिकल के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। मुतासरा इकरा बीबी की कोहिनूर न्यूज के तवस्सुत से इंसाफ की अपील। कहा कि मुलजिमान पुलिस को साथ मिलाकर मुझे धमका रहे हैं और सुलह के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाया जाए। उम्रे से आने वाले ज़ायरीन महकमाना बेरवी की भीड़ चढ़ गए। चंद रोज कबल उम्रे की सादत हासिल करके आने वाले शहरी का कीमती सामान आबे ज़मज़म और खजूर गायब। मुतासरा शहरी इमरान ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चंद रोज कबल उम्रे की सादत हासिल करके वापस आया, मेरा कीमती सामान न मिला। सिविल एविएशन से राब्ता किया। एविएशन वालों ने एयर ब्लू लाइन वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। महकमे की जानिब से बेहिसी की वजह से शहरी 1 लाख से ज्यादा नकदी से महरूम हो गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद आमिर इखलाक। पिंडी उम्रे से आने वाले ज़ायरीन महकमाना बेरवी की भीड़ चढ़ गया। चंद रोज कबल उम्रे से वापस आने वाले शहरी का कीमती सामान आबे ज़मज़म और खजूरें और दीगर अशिया ब्लू एयरलाइन पर सफर करने वाले शहरी इमरान ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा, एयर ब्लू पे हम गए थे, ठीक है, उसमें हमारा सामान था। वापसी जब हुई हमारी जद्दा से, ठीक है, उन्हें टैग नंबर लगा के मैं दिया, ठीक है, और वहाँ से वापस अभी पाकिस्तान एयरपोर्ट पे आए हैं। वो मैं कह रहा जी आपका सामान मिसप्लेस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बोले जी 15 दिन के बाद आए हम, ठीक है। जब वापस गया हूँ तो मुझे कह रहे आप अपना क्लेम बना के दे सामान का। तो मैंने उनको दिए 1280 रियाल बने थे, ठीक है। जब उसका इकबाल मैनेजर है, वो कहता है ठीक है जी हम आपको, इकबाल मैनेजर, ठीक है, उसने ये बोला जी हम आपको चेक इशू करके देंगे, ठीक है, चेक उधर से आएगा हम आपको देंगे, उसमें आपकी अमाउंट पूरी आएगी। जिसमें से उसने हमें 15,000 रुपये उन लोगों ने दिए। वो कहते हैं कि हम यही आपके बनते हैं, इसकी वजह से ये हमारा इशू है। और ये बहुत एयरपोर्ट का हमें बहुत खराब कर हमें बहुत ज़्यादा जलील ने बहुत ज़्यादा किया हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। वो तकरीबन जो 15,000 में लोगों ने दिया है उससे 20,000 रुपये फ्यूल मेरा लग चुका है गाड़ी पे। तो बाइक पे मैं गया अपना टाइम सारा खत्म कर गया हूँ, ठीक है ना। इन्हें बहुत हमें दलील किया। जो उनकी एयरलाइन है बिलू, एयर बिलू बहुत 3rd क्लास एयरलाइन है, ठीक है जी, बहुत इंसान को खराब करते हैं। ये 1,20,000 रुपये बनता है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको मैं चेक दिखाता हूँ, ये इन्हें मुझे चेक दिया है, ठीक है, ये चेक है, ये चेक इन्हें मुझे दिया जी 15,000 रुपये का, ठीक है। हाँ, ये कहते हैं जी हम यही सामान आपका सामान बनता है तो हम लोग यही देंगे, ठीक है। जिससे तो मेरे जो सामान है मैं लिए थे 1,20,000 रुपये के, ठीक है। चंद रोज कबल उम्रे की सादत हासिल करके वापस आया, जिसके बाद मेरा कीमती सामान न मिला। जिस पर सिविल एविएशन से राब्ता किया तो एविएशन वालों ने ब्लू एयरलाइन वालों को जिम्मेदार ठहराया। दोनों महकमों की बेहिसी की वजह से शहरी 1,20,000 से महरूम। शोर डालने पर एयरलाइन ने 15,000 का चेक देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन शहरी ने ऑफर को ठुकराते हुए आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ। पाकपतन में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में बह गईं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता कट जाने की वजह से मुल्क को खुराक फराहम करने वाले किसान खुराक से महरूम हो गए हैं। मजीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज का हालिया सैलाब इंसान के साथ हैवानों को भी मुतासर कर गया। दरमियाने दर्जे के सैलाब ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह की तो इंसानी खुराक के बाद जानवरों का चारा भी नापैद हो गया।
पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि हुकूमत सैलाब ज़दा इलाकों के रिहायशियों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। मेरा काश्तकार इस वक्त शदीद परेशान है क्योंकि उसके माल मवेशी और फसल सैलाब की नजर हो गई है। इस वक्त अगर गवर्नमेंट ने फौरी इक़दाम ना उठाए तो आने वाले दिनों में दूध का और खुराक की किल्लत का सामना हो सकता है, क्योंकि जो दरियाई बेल्ट पर लोग मौजूद होते हैं उनका जरिया मुआश माल मवेशी होते हैं। इस वक्त माल मवेशियों को चारा भी नहीं मिल रहा और वबा फैलने का खतरा है। इसलिए गवर्नमेंट को फौरी इक़दाम करने चाहिए, जानवरों का चारे का बंदोबस्त करें और माल मवेशियों को वैक्सीन की जाए। किसान कहते हैं कि हुकूमत ने सैलाब ज़दा इलाकों में फौरी रिलीफ के इकदाम ना किए तो मुस्तकबिल में दूध। पटियारी में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फयाज हसन खासखेली, रियाज हुसैन खासखेली की जानिब से फरीद हुसैन खासखेली की रिहाइश गाह से मातमी जुलूस बरामद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। में नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफगा की याद में फयाज हुसैन खासखेली, रियाज हुसैन खासखेली की जानिब से सालाना मातमी जुलूस मरहूम फरीद हुसैन खासखेली के गरीब खाने से हजरत गाजी अब्बास अलमदार का लंपाक और शहजादा इमाम अली असगर का झूला पाक बरामद करके मातमी जुलूस बरामद किया गया। मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में शबीह जुलजना भी निकाली गई, जबकि मातमी जुलूस में नुआ खान अंजुमनों जिसमें अंजुमन खैरुल अमल टंडोला यार, अंजुमन अल अब्बास मातमी संगत हाला पार्टी, अंजुमन गमे दस्तार हुसैन, अंजुमन दुआए सैयदा अली फैजान हुसैनी, अंजुमन अताए दुआए सैयदा और दीगर नोआ खानों ने नोआ खानी और मोमनी ने सीना सनी करके सैयदा जहरा के लाल को पुरसा पेश किया। जबकि मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हाशमी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली। अफसोसनाक खबर आपको दें कि सिविल अस्पताल डिगरी की छत का प्लस्तर गिर गया। छत का प्लस्तर गिरने के बाद इलाज की गर्ज से आने वाले बुजुर्ग मरीज, मासूम बच्चा और स्टाफ का एक शख्स जख्मी हुआ। जख्मियों में अब्दुल सलाम, निसार अहमद खासखेली, कासिद सिविल अस्पताल डिगरी शामिल। 1963 में तामीर शुदा अस्पताल की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो गई, किसी भी वक्त बड़े सान्हे का सबब बन सकती है। रोटरी क्लब इंटरनेशनल के गवर्नर शकील अहमद कायम खानी की 14 अगस्त के हवाले से कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे डॉक्टर एम लाल वागहानी से खसूसी गुफ्तगू। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी इस वक्त हम समारोह शहर की टाउन कमेटी में खड़े हैं, जहाँ पे 14 अगस्त के सिलसिले में एक मीटिंग रखी गई। उस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि उन्हों का क्या कहना है और उन्हों के इंतजामिया के बारे में क्या ये करना चाह रहे हैं। आपको अभी एज ए रोटरी क्लब में पहले तो ये हमें बताएं कि रोटरी क्लब में अभी एज ए आप क्या हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं रोटरी क्लब में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 25 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबों को मिलाकर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है और पाकिस्तान इस तरह 2 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी पिछले महीने ही इलेक्शन जीत कर आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी हूँ 25-26। ये तो आज हमारे समारोह के लिए आपकी जो बात कर रही है, पहले भी आप नाज़िम भी रह चुके हैं इसी सिलसिले में, लेकिन अभी आप रोटरी क्लब में जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी क्या इसमें आप मजीद क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे समारोह के बारे में, इसके बारे में थोड़ी तफसील हमें बताइए। समारोह में इससे पहले भी रोटरी ने बहुत से काम किए हैं। मसलन 2010 में 2011 की जो यहाँ पर सैलाब आ गया था उसमें भी रोटरी ने बहुत बड़ा काम किया था और 3 महीने तक लोगों को जो रोटरी टेंट विलेज बनाए थे उनमें लोगों को राशन खाना वगैरह सब तकसीम किया गया था। उसके बाद 2020 में जो सैलाब आया था उसमें 2022 में ये सारे रोटरी ने बहुत काम किए थे। इसके अलावा हम हर साल आई कैंप लगाते हैं और हमारे मेडिकल कैंप तो मुसलसल चलते ही रहते हैं मुख्तलिफ गाँव गोटों में और शहर में भी। और इसी तरह अभी
लोगों ने पानी के लिए, साफ पानी पिलाने के लिए शहर के लोगों को हमने फिल्टर प्लांट मंजूर करा लिया है। इंशाल्लाह 1 महीने में कोशिश करेंगे कि 1 महीने में उसका काम स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद शहर के लोगों को पीने का साफ पानी पिलाया जाए। और इसके अलावा अभी जो हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं रोटरी स्मार्ट विलेज के नाम से, तो उसमें हम यहाँ के जो बरसात मुतासरीन हैं उनके लिए हम उसमें घर बना कर देंगे। तो 14 अगस्त को इंशाल्लाह हमारे रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर मोहम्मद फैज की भाई साहब यहाँ पर आ रहे हैं समारोह, और वो इसकी स्ट्रॉन्ग लाइन सेरेमनी का एक बुनियाद रखेंगे इस रोटरी स्मार्ट विलेज की, पहले गाँव की। इसी तरह इंशाल्लाह 3 से 4 विलेज हम समारोह के सराउंडिंग में और बनाएंगे, और वो एक गाँव तकरीबन 30-40 घरों पर मुश्तमिल होगा, और उसमें हम तमाम सहूलतें उनको देंगे। जो उस गाँव में होंगे उनको उनके गुजर सफर के लिए भैंस, गाय, जानवर वगैरह भी दिए जाएंगे, और उस गाँव में स्कूल, कम्युनिटी सेंटर और डिस्पेंसरी वगैरह बना कर दी जाएंगी, और उनको तमाम सहूलतें, पानी, बिजली के लिए उनको सोलर सिस्टम दिया जाएगा। तो तमाम सहूलतें उस गाँव के अंदर रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से दी जाएगी। आज हमारा यूँ समझो कि अभी हमारा 14 अगस्त है और आज़ादी का दिन है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं समारोह के अंदर? हम लोग सबसे पहले तो हम ट्री प्लांटेशन का कर रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव हमारी होगी। हम शहर में, ग्राउंड में, और वो जिस रोड स्मार्ट प्लेस बना रहे हैं उसमें हम लोग पौधे लगाएंगे 14 अगस्त के दिन। और इसके अलावा हम लोगों ने एक क्रिकेट मैच अरेंज किया है, जो दोस्ताना मैच होगा 2 टीमों के दरमियान। उसमें समारोह के बहुत से अच्छे खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं, और समारोह के तमाशे। अवाम के मुहाफिज से खुद मुजरिम निकले। सांखड़ में गुटखा फरोशों समेत SHO टंडो आदम तुफैल भुट्टो समेत 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए। मुअत्तल होने वालों में हेड मॉरर इला बख्श, कांस्टेबल मोहसिन खोकर, अली नवाज, मोहम्मद नवाज चांडियो, अब्दुल कयूम नदीम शामिल हैं। SSP सांखड़ आबिद अली बलोच ने मुकदमात में नामजद मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उधर SSP सांखड़ आबिद अली बलोच की हिदायत पर SIP अब्दुल हकीम लाखू और सब इंस्पेक्टर वहीद अली डेरो ने टंडो आदम सिटी में मावा गुटखा तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियों को पकड़ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ज़ोहरा नूर की अवामी शिकायत पर दबंग कार्रवाई। मोहल्ला इस्लाम नगर में कागजीन से रास्ता वागुजार करवा लिया। AC ज़ोहरा नूर का कहना था कि सरकारी रास्ते पर एक शहरी की तरफ से आरसी तजावुजात करके रास्ता खोल दिया गया है, जो कि जरूरी कार्रवाई के बाद खोल दिया जाएगा। अहले मोहल्ला का रास्ता वागुजार होने पर इजहार तशक्कुर असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ज़ोहरा नूर को खराज तहसीन पेश किया गया। टांक में 10 रोज कबल कत्ल होने वाले तालिब इल्म के कातिल उसके अपने दोस्त ही निकले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आदम खान कुंडी। टांक के इलाके थाना गुम्बल में 13 साल लड़के के 4 कातिल उसके अपने दोस्त गिरफ्तार। तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बच्चा कत्ल हो चुका है, तो उसके बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मोरखा 30/7/2023 को मुश्ताक नामी एक शख्स ने अपने बच्चे सुहेल खान, जो उसका उम्र कोई 13-14 साल था, और उसको गला दबा के कत्ल किया गया था। मुझे टास्क हवाले की और एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जिसका मैं सरबराह था। तो मेरे साथ सर्कल DSP चंसा से SHO गोमल असगर अली शाह साहब, और इसी तरह जो तफ्तीशी अफसर था इनायतुल्लाह साहब, वो मेरे साथ टीम में मेंबर थे। तो हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके चंद दिनों के अंदर अंदर अंधे कत्ल का वो ट्रेस हो गई, और मुलजिमान ये मीडिया के सामने खड़े हैं। 4 मुलजिमान हैं। वहाँ एक जगह पे सोबत का प्रोग्राम बनाया, तो उस बच्चे को ले गया। वसीम का चादर था, तो उसे ये रिकवर किया है, इसको गले में। बन्नू में पोलियो मुहिम के दौरान फायरिंग से ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। हमलावर फरार हो गया। मौके से शहीद एहलकार कामरान खान की नमाज़ जनाजा एक बार शहीद पुलिस लाइंस में सरकारी एहसास के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जुस्ते खाकी को सलामी पेश की। RPO बन्नू कासिम अली खान, कमिश्नर परवेज खान, DPO इफ्तिखार शाह, सिविल हुकाम, पुलिस अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। कौमी परचम में लिपटे शहीद के ताबूत पर फूल चढ़ाए। मगफिरत के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहीद पुलिस एहलकार कामरान खान के जुस्ते खाकी को आबाई इलाके में
रवाना कर दिया गया। जद्दा में वेस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम FPL टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मुकामी होटल में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब में फातेह टीम अल सऊदी, अबू दाऊद ट्रेडिंग, फोकस अल हमरानी, अल कबानी, सदीक 11, एपिक्स प्राइड, आरकोमा, ब्लैक हॉक्स के खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का आगाज हाफिज इरफान की तलावत कुरान पाक से हुआ। WPCA एग्जीक्यूटिव काउंसिल डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। WPCA की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन, सदर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कमेटी मेंबरान की खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने कहा कि WPCA को सऊदी अरब में डिसिप्लिन के एतबार से बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का एहसास हासिल है। ग्राउंड की सहूलत पर बल्दिया जद्दा के नुमाइंदा रमजान के ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। FPL टूर्नामेंट और लकी ड्रॉज के इनामात स्पॉन्सर करने पर सीनियर सऊदी नेशनल खिलाड़ी और बिजनेसमैन नदीम अब्दुल्ला साल नदवी का खसूसी शुक्रिया अदा किया गया। मेहमान खसूसी डॉक्टर मंजूर काजी, डॉक्टर मधु कुमार, डॉक्टर आसिफ मलिक, नदीम नदवी, इमरान मिर्जा, जिशान खलील काजी, सीनियर सहाफ़ी सैयद मुसर्रत खलील, खालिद शीमा और मोहम्मद अमानतुल्लाह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। जद्दा से शुएब राजा की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर कैंट में जामिया बैनुल कुरान अकेडमी की ज़ेरे एहतमाम बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के एसासी सफ़ीर डॉक्टर लाइफ हेल्थ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। रेवेरेंड डॉक्टर मुर्कस फिदा और अलामा ज़ुबैर ज़हीर ने भी खसूसी शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने सर अंजाम दिए। शरिया उलमा कौंसिल के रहनुमा कासिम अली कासमी और चौधरी सगैर अब्बास जमात अहले सुन्नत के रहनुमा काजी अब्दुल गफ्फार कादरी, जमील खान, सरदार बशंत सिंह, सरदार सिकंदर सिंह, पास्टर अमजद नियामत, प्रेस्बिटेरियन चर्च, प्रोफेसर महमूद गजनवी, एडवोकेट अमानू एल कलसार, मौलाना शकील रहमान नासिर, भगत लाल समेत दीगर मजहबी रहनुमा शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब आंगी रवादारी, मोहब्बत और अक़वत का दर्स देता है। मौजूदगी हालात में इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। आपको अपडेट करते चले। इस हवाले से अहम खबर है कि लाहौर कैंट में जामिया बैतुल कुरान अकेडमी के ज़ेरे एहतमाम बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के एसासी सफ़ीर डॉक्टर लाइफ हेल्थ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। रेवेरेंड डॉक्टर मरकज फदा और अलामा ज़ुबैर ज़हीर ने भी खसूसी शिरकत की। मेज़बानी के फ़राइज़ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन ने सर अंजाम दिए। शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा कासिम अली कासमी और चौधरी सगैर अब्बास जमात अहले सुन्नत के रहनुमा काजी अब्दुल गफ्फार कादरी, जमील खान, सरदार बशंत सिंह, सरदार सिकंदर सिंह, पास्टर अमजद नियामत, प्रेस्बिटेरियन चर्च, प्रोफेसर महमूद गजनवी, एडवोकेट अमानू एल कुलसार, मौलाना शकील रहमान नासिर, भगत लाल समेत दीगर मजहबी रहनुमा शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब हम आंगी रवादारी, मोहब्बत और अख़वत का दर्स देता है। मौजूदगी हालात में इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। लाहौर शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। MD वासा ने स्टाफ को फील्ड में मुतहरिक रहने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वासा लाहौर की तरफ से अब तक बारिश का रिकॉर्ड जारी। जेल रोड पर 1.25 मिलीमीटर, मीटर हेड ऑफिस गुलबर्ग 8.5, लक्ष्मी चौक 46, अपर मॉल 48,
ताजपुरा 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 49, फर्रुखाबाद 6, गुलशन रावी 71, इकबाल टाउन 5, समनाबाद 2, करतबा चौक 4 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।